Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well and staying safe at your home. Children, we have discussed the keywords of the third chapter. Okay? We have discussed the fiber to fabric. We have discussed the keywords also. And you know, children, key when you go through the keywords now, entire chapter has been revised thoroughly. So now we are on the next chapter, that is a very important chapter called the sorting materials into groups. Okay, now in this chapter lots of keywords are there. Okay, lots of keywords are there which we have to discuss. Let us see. You can see in the keywords at the last of the chapter. See, I'll show you. And these all are very important. See, hard, insoluble, luster, material, metals, opaque, rough, soluble, translucent, transparent, and apart from them we will also discuss the magnetic materials. Okay, I have told you about the magnetic and non-magnetic material, conductors, insulators, what is magnetism, है ना? So these all are the very important terms which we have to discuss. Okay, so let us start one by one. Children, this chapter is very important. You know, placing or sorting the similar things. अगर आप एक सेम टाइप की चीज़ों को एक साथ रखते हो तो उसको वी कॉल्ड इट व्हाट, ग्रुपिंग. ओके, वी बेसिकली कॉल्ड इट ग्रुपिंग. एंड यू नो, ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर फॉर अस टू फाइंड द थिंग्स व्हेन वी नीड देम, है ना? अगर आपने पुराने मेरे लेक्चर्स देखे हो, अगर शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स अगर आप जाओगे, मैंने जो लिंक्स प्रोवाइड किए थे आपको 4 चैप्टर्स के, जब आप इसके थ्रू जाओगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. बहुत ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है. एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. Okay, and you know, I have told you that we saw that many things like the food, clothes, okay, they all have the much variety. Lots of variety are there, and even not just the food and clothes, there are such a vast variety of objects everywhere, है ना? We see around a chair, bullock cart, cycle, cooking utensils, books, cloths, toys, water, stones, lots of things are there. Okay, and many other objects. And you know, all these objects have a different shape, different color, different uses, है ना? So you know, these objects are made of different materials, है ना? These objects are made of different materials. And you know, one material can be used to make different objects. And why it is possible, children? Because different types of material have different properties, है ना? And we have to choose the materials with the right properties based on what we want to use, है ना? ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हम डिफरेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, है ना? और हम राइट प्रॉपर्टीज़ को चूज़ करके हम उसका क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में उस चीज़ को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आप सोचो, जैसे चौक है ना? अगर चौक वुड और प्लास्टिक का बना होता तो क्या आप उसको लिख पाते? क्या वो आपकी यूज़ का था? नो. अ चौक मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक would be of no use. Why? Because it cannot be used to write on the blackboard. तो अगर हमको कोई चीज़ बनानी है ना, तो हमें उसकी प्रॉपर्टी पे पहले डिस्कस करना पड़ेगा, हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ समझनी पड़ेंगी, है ना? तो इस चैप्टर में बच्चों आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने को मिलेगी जो हम लोग को बेसिकली जानना है ना? तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दी गई है वो है आपकी अपीयरेंस. ये देखो, दिस वन, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल में तो फर्स्ट थिंग है वो क्या है, आपका अपीयरेंस. चिल्ड्रन, नाउ व्हाट इज अपीयरेंस? ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है ना? अपीयरेंस मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम बाहर से देखते हैं फिजिकली ऊपर से, तो वो कैसा दिखाई देता है. समझ में आ रहा है? यू आर गेटिंग? जैसे मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आपको पता है ना, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से अलग अलग डिफरेंट दिखेगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आयरन, and iron appears different from the copper and aluminum, है ना? तो उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो रफ है या स्मूथ है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अपीयरेंस होती हैं. वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ये सब इसमें अपीयरेंस में आती हैं बच्चों, है ना? तो दिस ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड्स. आपको पता होना चाहिए कि अपीयरेंस क्या होता है.
अपीयरेंस मीन्स क्या होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऊपर से देखने में, ठीक है, बाहर से देखने में फिजिकली वो लुक कैसा दिखता कैसा है ना, वो रफ है या स्मूथ है, ये हो सकती है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है ना, शाइनी है या डल है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लश्यर शाइन से, है ना। चिल्ड्रन सी, आपने देखा होगा कि जब आप कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, जैसे आप बाग कट्टी ले सकते हो, चॉक ले सकते हो, एल्युमिनियम शीट ले सकते हो, कार्डबोर्ड ले सकते हो, कॉपर वायर ले सकते हैं। आप एक बहुत कॉमन चीज़ देखोगे, ठीक है, जैसे चॉक हो गया, वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, पेपर हो गया, जब आप इनको कट करते हो ना, तो जो कटिंग सरफेस होता है वो चमकता नहीं है, शाइन नहीं करता। जबकि आप कॉपर का वायर ले लो, एल्युमिनियम की वायर ले लो, एल्युमिनियम की शीट ले लो, जब आप इसको कट करते हो तो एक शाइनी सरफेस दिखाई देता है ना। तो शाइनी सरफेस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या, वो चमक रहा है, शाइन कर रहा है। तो नॉट ऑल द मटेरियल्स शाइन, सारे मटेरियल शाइन नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स हैं जो शाइन करते हैं कट करने के बाद, और वो बेसिकली आपके जनरली कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं, दे आर द मेटल्स, है ना। एंड यू नो ऑल द मेटल इन प्योर स्टेट आर शाइनी, है ना। सो दिस, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, जो शाइन करने की प्रॉपर्टी होती है, इसको एक टर्म दिया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड द लस्टर। यस चिल्ड्रन, it is there, you can see, and that is called the luster. See, Lustre, है ना। So what is luster? Luster is the shine of a material. किसी भी मटेरियल की शाइन होगी उसको हम what we call them? We call them just luster, है ना। और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, अब देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि डिफरेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, और जब हमको यूज़ करना होता है तो हम जो राइट प्रॉपर्टीज होती है उसी को चूज़ करते हैं। तो अभी इस लश्यर प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, आप सोचो कि जैसे लश्यर अगर उसमें शाइन है तो उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर, नाउ यू सी दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग व्हाट, ज्वेलरीज एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स, है कि नहीं है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्वेलरीज बना सकते हैं कि ज्वेलरीज आपकी शाइन करती हैं, है ना। तो ये हो गया आपका लश्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों प्रॉपर्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड भी है। यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हार्डनेस, है ना। हार्डनेस इज व्हाट, हार्डनेस इज इफ यू कंप्रेस एनीथिंग, है ना, अगर आप किसी चीज़ को दबाओगे ना, उसको कंप्रेस करोगे तो वो दबेगा नहीं, है ना, इट विल नॉट कंप्रेस। तो हम बोलेंगे कि वो मटेरियल कैसा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज़ वेरी हार्ड, है ना। वो मटेरियल आपका क्या है, बहुत ही हार्ड है। यू आर गेटिंग, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed, है ना। तो जो चीज़ें आप easily compress कर लोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट, व्हाट वी कॉल इट, सॉफ्ट। और जिन मटेरियल्स को बहुत ही डिफिकल्टी होगी कंप्रेस करने में, व्हाट वी कॉल देम हार्ड मटेरियल्स। यस, फॉर एग्जांपल कॉटन स्पंज इज अ वेरी सॉफ्ट while iron is a very hard material. यहाँ गेटिंग माई पॉइंट, ये समझ में आए कि हार्डनेस भी क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इन्हीं का यूज़ करके आप की बना सकते हो, जैसे जो भी हार्ड चीज़, जैसे की हो गया, नेल हो गया, ये सब आयरन का ही बनता है, आप स्पंज का और जो कॉटन से नहीं बना सकते, ठीक है ना। अब देखो इनके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है रफनेस, है ना चिल्ड्रन। अगर आप ध्यान से देखो तो रफनेस भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कैसे, जैसे मटीरियल या तो रफ हो सकता है या स्मूथ हो सकता है। जैसे आप एक ट्री की बार्क को जब बाहर से आप टच करोगे ना तो आपको क्या लगेगा, रफ लगेगा ना रफ। जबकि आप फ्लावर्स के पेटल्स को देखोगे तो बहुत स्मूथ दिखते हैं वो, है ना, बहुत स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये होती है आपकी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं रफनेस। गेटिंग, सो रफनेस इज व्हाट, रफनेस कैन बी, यू कैन से देयर आर बम्प्स और रिजेस ऑन देयर सरफेस। कोई भी मटेरियल है अगर उसके सरफेस पे, ठीक है, बम्प्स हैं, ठीक है, रिजेस हैं, ठीक है, तो उसको कह सकते हैं कि वो रफ मटेरियल है ना। और ये कैसे हो सकता है, जब आप उसको टच करेंगे तो आपको फील होगा, इट विल बी फील। एंड व्हाट आर स्मूथ मटेरियल्स, द स्मूथ मटेरियल लैक दिस बम्प्स। स्मूथ मटेरियल में ये जो बम्प्स और जो रिजेस होते हैं ये नहीं होते। रफ मटेरियल के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, रॉक्स हो गया, सैंड पेपर हो गया, बार्क ऑफ अ ट्री, है ना। वेयर इज अ ग्लास शीट
flower petals, surface of an apple are some examples of the smooth surfaces. ठीक है, so these all are the very important appearance properties. Getting? चलो अब आते हैं कुछ और टर्म्स पे. सॉल्युबल और इनसॉल्युबल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है चिल्ड्रन कि व्हाट आर सॉल्युबल एंड व्हाट आर इनसॉल्युबल. अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, इफ यू हैव सीन दिस वीडियो यू माइट हैव remind this, okay, and you have revised also this very important chapter it is. So what is soluble and what is insoluble? Can you tell me children? मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है चिल्ड्रन. जो सॉल्युबल का मतलब देखो बेसिकली क्या होता है. आप बहुत सारे सैंपल कलेक्ट कर लो, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस जैसे शुगर हो गया, चॉक हो गया, सॉल्ट हो गया, सैंड पेपर, सॉडस्ट, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट ग्लासेस लीजिए, ठीक है, और इन ग्लासेस में ये सारे मटेरियल्स को आप ऐड कर दीजिए. उसके बाद स्पून लेके इसको स्टर करिए, ठीक है, इसको अच्छे से मिलाइए. आप देखोगे थोड़ी देर के बाद कि जो शुगर एंड सॉल्ट था वो कम्प्लीटली गायब हो गया, वाटर में नहीं दिखेगा, ठीक है, कम्प्लीटली क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, है ना. तो ऐसी चीज़ें को हम बोलते हैं कि वो सॉल्युबल है. क्या है? सॉल्युबल. यस, means those solid material that dissolve in water. Getting my point? Those solid materials that dissolve in water are called soluble in water. Yes, जो चीज़ें पानी में घुल जाएं, इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपकी पानी में घुल जाएं, डिसॉल्व हो जाएं, हम बोलेंगे कि वो चीज़ें आपकी सॉल्युबल हैं वाटर में. ओके, जैसे कॉमन सॉल्ट एंड शुगर. And those solid materials that do not dissolve in water, yes, are said to be the insoluble in water. Getting? जैसे एग्जाम्पल सैंड हो गया, वुड हो गया, स्टोन, चॉक पाउडर, वैक्स, these all are. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका ये soluble important टर्म है. ठीक है, and those who do not dissolve in water are said to be insoluble in water. अब ये हो गई बात बच्चों सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की. अब आपको पता है ये तो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो रही हैं. व्हाट अबाउट द लिक्विड्स? आपको पता है लिक्विड्स भी ऐसे हैं, जो कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, और जबकि कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे. बच्चों सोचो जरा, कैन यू थिंक कौन कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं विच कैन बी डिसॉल्व इन वाटर? सी फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द एल्कोहल, है ना, और अल्कोहल का वाटर में ऐड करके स्टिर करोगे तो अल्कोहल डिसअपियर हो जाएगा, वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, है ना. तो ऐसे लिक्विड जो वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मिशिबल लिक्विड्स. यस चिल्ड्रन, व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड द मिशिबल लिक्विड्स. इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, है ना. तो व्हाट आर मिशिबल लिक्विड्स? लिक्विड्स दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी miscible in water. Okay, for example alcohol, vinegar, lemon juice, honey, glycerine, these all are the miscible liquids. Important term hai children, and it is called the miscible liquids. And you know the liquids that do not dissolve in water are said to be immiscible. और ऐसे liquid जो आपके water में dissolve नहीं होते हैं children, they are called immiscible. IMMISCIBLE, immiscible in water. And miscible is MISCIBLE, miscible in water. Okay, so what are the examples of immiscible liquids? They are kerosene, coconut oil and diesel. है ना. अब मिट्टी का तेल देखो, मिट्टी का तेल या ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल आपके घर में है, ठीक है, सरसों का तेल, उसको जब वाटर पे क्या करोगे, ऐड करोगे, आप देखोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, ऊपर फ्लोट करेगा, है ना. तो वो लिक्विड ऐसा है जो वाटर में मिक्स ही नहीं हो रहा है ना. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमिशिबल लिक्विड्स. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. हम लोग यहाँ पे कीवर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, है ना. चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और कीवर्ड्स की हेल्प से ही हम चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं. एक तरीके से देखें तो ये कीवर्ड्स के आसपास ही आपका पूरा चैप्टर होता है ना. तो अगर आपने कीवर्ड्स को समझ लिया तो आपने 80 to 85% चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, ठीक है. ओके, अब आते हैं फ्लोटेशन. आपको पता है बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं बच्चों जो वाटर में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं,
है ना. एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू फ्लोट ऑन वाटर इज कॉल्ड फ्लोटेशन. Mark my words, okay? The property of a material to float on water is called flotation. Means material की वो property है ना जिसमें वो material क्या करता है, water पे float करता है, उसको हम क्या बोल देंगे, flotation, है ना. तो generally कौन कौन से material float करते हैं, जैसे wood हो गया, leaf, feather, है ना, ये बहुत light materials हैं और ये क्या करते हैं, water पे float करते हैं. जबकि आप बात करें rock की, मेटल की, कॉइन की, तो ये क्या हो जाएंगे, सब के सब सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं, है ना. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं विच में फ्लोट और सिंक. तो फ्लोट समझ में आया, फ्लोट वो होता है जो पानी के ऊपर तैरता है, एंड सिंक इज व्हाट, जो डूब जाता है. समझ में आ गया बच्चों, ठीक है. तो ये बात हो गई फ्लोट और सिंक की, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी चिल्ड्रन, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया, ठीक है. चलो अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी बेसिकली, ठीक है ना. आपको पता है डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास. आपको पता है जो डिफरेंट मटेरियल होते हैं उनसे जो लाइट जो है ना वो डिफरेंट पास हो सकती है, अमाउंट उसका. जैसे मान लो कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट पास हो जाएगी, कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिससे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ लाइट पास होगी, और कुछ ऐसे मटेरियल जिससे लाइट पास ही नहीं हो सकती, जैसे वॉल, है ना. अगर वॉल हो, ठीक है, या बुक हो, तो उससे क्या लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ उससे जा सकती है, पास हो सकती है, नहीं हो सकती, है ना. तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया है, जो मटेरियल्स होते हैं ना उनको डिफरेंट कई 3 टाइप्स में उसको क्या किया हुआ, डिवाइड किया हुआ. तो बट पहले तो हम ट्रांसपेरेंसी देखें, ठीक है. ये देखो एक टर्म है ट्रांसपेरेंसी, कि ये ट्रांसपेरेंसी क्या होती है ना. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, सी, different materials allow different amounts of light to pass through them, and depending on a property we call what, transparency, है ना. तो different material allow different amounts of light to pass through them depending on a property, and this is called the transparency. यानी जो क्या मैंने बताया कि different जो materials होते हैं and they allow the different amounts of light to pass through them, and this property is called transparency, है ना. और आपको पता है ट्रांसपेरेंसी की बेसिस पे मटेरियल्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट इज व्हाट, ट्रांसपेरेंट. फर्स्ट इज व्हाट, ट्रांसपेरेंट. सेकंड इज ट्रांसलूसेंट, एंड थर्ड इज ओपेक. इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, ठीक है. तो आओ देखते हैं. चलो ये देखिए, अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट के. आप कभी देखो, आप शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे जो कैंडीज, टॉफ़ीज़ रखी होती है ना, वो देखा होगा एक ऐसे जार में रखी होती है ना कि आपको बाहर से ही वो टॉफ़ीज़ दिख जाती हैं कि अंदर क्या रखा हुआ है ना. तो ऐसे जार को बोलेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है. तो ऐसे और क्या, ऐसे क्यों हो रहा है, आप उस जार के थ्रू अंदर की चीज़ें कैसे देख ले रहे हो, आप इस वजह से देख पा रहे हो क्योंकि उस जार से क्या हो रहा है, उस जार से लाइट कंप्लीटली पास हो रही है ना. सो ऐसे मटेरियल दैट अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जिससे लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है ना, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. और उससे लाइट पास हो जाती है, इसीलिए हम उसके आर पार देख पाते हैं. तो जैसे क्या क्या, कौन कौन चीज़ जिसके आर पार आप देख पाते हैं, ग्लास हो गया, एक्राइलिक शीट हो गया, वाटर हो गया, सेलोफेन पेपर, जो आप पेपर चढ़ाते हो कवर के रूप में अपने बुक्स कॉपीज़ पे, उसके आर पार आप देख पाते हो सेलोफेन पेपर. तो ये सब क्या होंगे, ये सब ट्रांसपेरेंट है ना. जैसे मैंने एग्जांपल अभी बताया, जैसे शॉपकीपर जो होता है, जो जनरली प्रेफर टू कीप द आइटम्स लाइक टॉफीज, बिस्किट, स्वीट एटसेट्रा इन द ट्रांसपेरेंट जार्स सो दैट वी कैन सी देम ईजिली, है ना. आपके घरों में जो विंडोज़ होते हैं, विंडोज़ के जो ग्लास होते हैं जनरली वाइट कलर के, वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनसे भी लाइट एक जगह से दूसरी जगह पास हो सकती है, ठीक है चिल्ड्रन. तो ये था बच्चों ट्रांसपेरेंट. चलो अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट है आपका ट्रांसलूसेंट. बच्चों ट्रांसलूसेंट में क्या है कि इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट में तो पूरी लाइट पास हो रही थी, ट्रांसलूसेंट में थोड़ी बहुत लाइट पास होगी. मीन्स the material that allow some light to pass through them
आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। मीन्स ऐसे मटेरियल जिससे क्या होगा, थोड़ी सी लाइट पास हो, उनको हम ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। व्हाट वी कॉल देम, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। जैसे ऑयल्ड पेपर हो गया, कलर्ड ग्लासेस हो गए, है ना, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब आपके ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, दिस ऑल आर द ट्रांसलूसेंट। इनसे क्या होगा, धुंधला दिखेगा आपको कंप्लीटली। इनके आर पार जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो एकदम क्लियर दिखाई नहीं देगा, बहुत ही धुंधला सा दिखेगा, है ना। सो दिस आर कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, द मटेरियल थ्रू विच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, है ना। ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते, दे आर कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ओके, अब आते हैं हमें अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं ओपेक, OPAQUE। समझ में आ रहा है। और आपको बताऊं बच्चों, ये जो ओपेक जो टर्म है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ये देखिए यहाँ पे है ये, ठीक है। ओपेक का मतलब क्या, ओपेक का मतलब बच्चों आपको समझ में आया होगा, यानी ओपेक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास नहीं होते। मीन्स द मटेरियल that do not allow light to pass through them are called opaque materials। मीन्स ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती उनको हम लोग ओपेक मटेरियल बोलते हैं। सिंपल है, यानी इनके आर पार आप देख नहीं सकते। जैसे वुड हो गया, मेटल हो गया, लीफ हो गया, बुक हो गई, स्टोन हो गया, ये सब के सब क्या है, ओपेक मटेरियल्स। आगे समझ में चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने फ्लोटेशन डिस्कस कर लिया, सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर लिया, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल चीज़ें डिस्कस कर दी। अब एक दो टर्म्स और हैं जो यहाँ आपके बुक पे नहीं है बट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, इस चैप्टर के थ्रू। तो आइए उसको देख लेते हैं बच्चों। एक टर्म होता है मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना। बच्चों आपको पता है कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है ना। द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट के द्वारा क्या हो जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं, यानी जिनको मैग्नेट क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। मीन द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। और ऐसे मटेरियल जिनको नहीं अट्रैक्ट करेगा वो क्या कहलाएंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो दोज ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ आयरन आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, यानी जो आयरन से बने चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मैग्नेट्स के थ्रू अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये भी एक मेटल्स हैं और ये भी क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट लास्ट हमारी दो टर्म्स बचे हैं जिनको मुझे डिस्कस करना है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, इसमें है नहीं बट फिर भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। उनकी वो भी जो है मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ में ही आते हैं, उनके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। वो होता है आपका कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इंपॉर्टेंट है ना, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कभी आपने सोचा है अगर आप अपने किचन में जाएं, वहाँ के जो यूटेंसिल्स बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर मेटल्स के बने होते हैं, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इन सारी चीज़ों के बने होते हैं, है ना। बट उनके जो हैंडल्स होते हैं बच्चों, वो आपने देखा होगा या तो वुड के होते हैं या प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक के बने होते हैं। ऐसा क्यों, कभी आपने सोचा है कि जो आपका यूटेंसिल है वो तो आपका मेटल का बना है लेकिन जो उसका हैंडल होता है वो वुड और प्लास्टिक का बना होता है, क्यों, वाई आरंट द हैंडल्स मेड ऑफ मेटल्स एज वेल, कैन यू टेल मी। आई टेल यू बच्चों, दिस इज बिकॉज द मेटल्स गेट हीटेड, है ना, क्योंकि मेटल जो है हीट हो जाते हैं, जबकि आपके प्लास्टिक और वुड जो है वो हीट नहीं होते हैं। क्यों होता है बच्चों ऐसा, आप लकड़ी को अगर हीट करने की कोशिश करोगे तो वो हीट नहीं होगा, वो जल जाएगा, है ना। प्लास्टिक को हीट करने की कोशिश करोगे तो वो जल जाएगा, गर्म नहीं होगा, है ना। तो ऐसे मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड द कंडक्टर्स ऑफ हीट। मीन्स ऐसे मटेरियल, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू हीट फ्लो हो सके, फ्लो का मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। हीट मतलब क्या होती है, गर्माहट, है ना। जो आप हीट दे रहे हो उसको, ठीक है, फ्लेम से जो हीट मिल रही है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो पास करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पास करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक लंबी से आपके पास अगर आयरन की रॉड है, ठीक है,
सोचो जरा कि अगर आपके पास एक आयरन की लंबी सी रॉड है और उस लंबी सी रॉड को उसके एक जो कॉर्नर है उसको आप आग में क्या करो, ठीक है, फायर में उसके ऐसे उसको डाल दीजिए और एक एंड को आप अपने हाथ से उसको क्या करिए, पकड़े रहिए। थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो क्या होगा कि जो एंड आपने पकड़ रखा है ना, ठीक है, वो आपकी उंगलियां धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, आपकी उंगलियां भी हीट हो जाएंगी। तो क्या हुआ, वो तो दूर था ना, आग आपसे काफ़ी दूर थी, फिर आपका हाथ कैसे गर्म हो गया, है ना, वो आपके मेटल के थ्रू, यानी जो रॉड आपने आयरन की ली थी वो हीट उसके थ्रू वहाँ से यहाँ तक आपके पास आ गई। तो ऐसे मटेरियल, ठीक है, जिसके थ्रू हीट क्या कर सके, फ्लो कर सके एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम लोग बोलते हैं बच्चों कंडक्टर्स। ठीक है, आप समझ में आया कंडक्टर्स क्या होते हैं? सो कंडक्टर्स आर द मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, जबकि those material that do not allow heat to flow through them are called insulators। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू हीट नहीं फ्लो हो पाती, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। वुड में क्या है कि जब आप उसको एक एंड को पकड़ोगे, दूसरे एंड को जब उसको फायर में डालोगे, आग में डालोगे, तो आपका हाथ इधर गर्म नहीं होगा, ठीक है ना। वो तभी गर्म होगा जब वो वुड जो है, लकड़ी जलते 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 आपके हाथ के पास आ जाएगी, तब आपका हाथ जलेगा, अदरवाइज वो हीट को फ्लो नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई किसकी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। इंपॉर्टेंट टर्म्स से बच्चों इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था, है ना। और आपको पता है जो कंडक्टर्स होते हैं वो हीट का भी फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो करते हैं, है ना। आपने देखा जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, अंदर अंदर मेटल्स होता है और ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक होता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है ना। तो उससे आपका हाथ में शॉक नहीं लगेगा या गर्म नहीं होगा, लेकिन अंदर क्या है, मेटल्स हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पास करेंगे। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टर्स, है ना। और उसके ऊपर जो कवरिंग होती है प्लास्टिक की, वो क्या होता है, इंसुलेटर्स होते हैं। तो बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, these all are the keywords which I have discussed. We have discussed the transparent, translucent, opaque, miscible, immiscible, magnetic materials, non-magnetic materials, conductors, insulators, luster, है ना, rough, smooth, hard, soft, soluble, insoluble। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स विच वी हैव डिस्कस टुडे, ठीक है। सो बच्चों गो थ्रू दिस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा इसी के बहाने, ठीक है ना। सो इनको आप कॉपी में लिखेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।